हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में। स्टे होम, स्टे सेफ। आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास 12 केमिस्ट्री, दैट इज द सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग। बेटा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर classified crystalline solids are classified into the four categories. One is the molecular solids. One is the molecular solid. Second one is the ionic solid. Third one is the metallic solid. And fourth one is the networked or covalent solid. So these are the four types of the solids are there. Crystalline solids are there here. Based on these are classified based on the intermolecular forces of attraction that are operating between them. जिस टाइप का क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, आपके क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक्ट करते हैं। उसी के बेसिस पर इनको फोर टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. First one is the molecular solid. Molecular solids वो होते हैं जिसमें क्या कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, क्या हो, कंस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो. इनके मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से होल्ड होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द लंडन फोर्सेस, dispersion forces and the dipole interaction and hydrogen bonding. So these are further classified into the non-polar molecular solids. So non-polar molecular solids are those in which the constant particles, these are the crystalline solids in which the constant particles are the atoms. Simply these are the atoms like those of the noble gases. जो आपके क्या है, नोबल गैसेस के एटम होते हैं बेटा, उनके एटम्स होंगे. और सिंपली द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल में आपका आएगा सॉलिड आर्गन, सॉलिड हाइड्रोजन, हीलियम, सॉलिड हीलियम, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड argon, solid I2 iodine and solid CO2. These are the example solid hydrogen, helium, solid hydrogen, solid argon, solid iodine, solid carbon dioxide. These are the example of the non-polar molecular solids. Dear students, the molecules in such a non-polar molecular solids are held together by the weak dispersion forces और लैंडन फोर्सेस. इसमें जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर होते हैं. किसके थ्रू होते हैं? वीक डिस्पर्जन फोर्सेस के थ्रू होते हैं या लैंडन फोर्सेस के थ्रू होते हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन-पोलर सॉलिड्स. Characteristics of non-polar molecular solids. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर जनरली द सॉफ्ट सॉलिड्स. दीज आर द क्या है? सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं. फर्स्ट वन. सेकंड क्या है? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
वो आपका क्या होता है, लो होता है. Based on the low melting and boiling point, these are generally liquid and gases at room temperature. Liquid and gases at room temperature and pressure. Room temperature and pressure. Room temperature and pressure. Room temperature and pressure पर ये क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, these are the liquids होंगे या gases होंगे. So let's see, these are the soft solids होते हैं. They have the low melting and boiling point. इनका melting and boiling point low होता है. These are the generally the liquids and the gases at room temperature pressure. Room temperature pressure पे ये क्या होते हैं, liquid होते हैं और gases होते हैं. And fourth one is these are the insulator. These are non-conductor of electricity. These are non-conductor of electricity. These are the non-conductor of the electricity. Why? Because these are consist of the neutral atoms, neutral molecules or atoms, and neutral molecules are not free to move about in the aqueous solution or simply in the solid state. So generally these are the non-conductor of the electricity. Yeah, there are the four characteristics. One is they are the soft solids. Second, they have the low melting and boiling point. Third one, these are the generally the liquids and the gases at room temperature and pressure. And fourth are these are the non-conductor of the electricity. These are the non-conductor of the electricity. So it's one completed. Now we will study the next one, that is the polar molecular solids. क्या पढ़ेगा? Polar molecular solids. तो start. सेकेंड वन इज द और बी पार्ट है मॉलिक्यूलर का, क्या है आपका, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं इन विच द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली दीज आर द कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द कोवेलेंट बॉन्ड. दीज आर द कंसिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्म बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्या होते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस से बनकर बने होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, सॉलिड HCl हो गया, सॉलिड आपका SO2 हो गया, एटसेट्रा. दीज आर द जनरली द एग्जांपल ऑफ द. इसमें क्या है आपका, जो आपके एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं. क्या होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होते हैं. In such molecular solids, the molecules are held together by, in such molecular solids, the molecules are held together by the strong dipole interaction. क्या होता है, dipole interaction होता है, यहाँ पर strong forces होते हैं in comparison to the dispersion forces and London forces comparison में. And the characteristics, now we will study the characteristics of the polar. So characteristics of polar molecular solids. तो characteristic जनरली क्या क्या है, characteristics में क्या है, these are mostly the property characteristics are similar to that of the non-polar molecules. So one is they are generally also the soft, they are soft solids. They also have the low melting point. They have low melting point and boiling point, but their melting point and boiling point is higher than those of the non-polar molecular solid. जो non-polar molecular solid होते हैं उनके कंपेरिजन इनका बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ज्यादा होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, व्हिच आर स्ट्रॉन्गर देन द डिस्पर्जन फोर्सेस और लैंडन फोर्सेस. थर्ड वन, these are non-conductor of electricity. Non-conductor of electricity. ये भी क्या होते हैं, non-conductor of electricity होते हैं. These are the fourth property है. These are most of them because they have low melting point and boiling point. Because of this, most of them
are liquids and gases at room temperature and pressure. क्या होता है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दे आर द सॉफ्ट सॉलिड। ये क्या होते हैं? ये भी आपके सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। दूसरी क्या है? दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है एज कंपेयर टू द non-polar molecular solid. Their melting point and boiling point higher than those of the non-polar molecular solid. Why? Because here in the molecules are held together by the strong डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड होते हैं वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नॉन पोलर कंपेरिजन में क्या होता है? हायर होता है। दीज आर द आल्सो द नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इनके भी क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव बिकॉज ऑफ दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से मोस्ट ऑफ देम आर द लिक्विड्स एंड द गैसेस एट रूम टेम्परेचर। इनमें से मैक्सिमम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द नेक्स्ट वन, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड। सी पार्ट, ये भी नॉन पोलर है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। These are the hydrogen bonded molecular solid. These are the solids in which the hydrogen bond are present in between the molecules. Molecules के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इनको क्या बोलते हैं? आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जैसे आपका सॉलिड वाटर क्या है आपका? सिंपली एग्जांपल आपका आइस का। किसका? आपका आइस होती है, बर्फ होती, ये क्या होता है? सॉलिड वाटर होता है। वाटर ही आपका क्या है? सॉलिडिफाई हो जाता है। दीज आर द जनरली द सॉफ्ट। अब इनकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें क्या होगा देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सिंपली इसमें आइस क्या है? आइस का फार्मूला क्या होगा? H2 होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या है? बॉन्डेड है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आपका ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड होता है तब उसके बीच में क्या होगा? जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है आपका? वो बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। These are volatile solids. These are the volatile solids. ये क्या होते हैं? जनरली ये क्या होते हैं? volatile solids होते हैं and liquids at the room temperature. volatile solid और liquid होते हैं at room temperature पे। Simply क्या है? These are the volatile solids. क्या होते हैं? volatile solids होते हैं। And second one is they are also non-conductors of electricity. These are also the non-conductors of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं या बैड कंडक्टर आप कह सकते हैं। एंड दे हैव द थर्ड वन इज दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दे हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों इसमें हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक करने में क्या है? एनर्जी ज्यादा लगती है। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हायर होता है इन कंपेरिजन टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड पोलर मॉलिक्यूलर नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो they have the high melting point and boiling point as compared to the non-polar and polar molecular solids. So students, now the molecular solids have been completed. Now we will study the ionic solids. आयनिक सॉलिड्स वो होते हैं
इसमें क्या है, कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं और एंड निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं कंस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं, कंस्टेंट पार्टिकल मतलब जिनसे मिलकर के सॉलिड बना होगा, वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे एंड निगेटिवली चार्ज आयन होंगे। दीज आर पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन बेसिकली हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। सो कंस्टेंट पार्टिकल जनरली यू मे से दैट दीज आर द इन द आयनिक सॉलिड द कंस्टेंट पार्टिकल्स आर द आयंस। क्या होते हैं, आपके आयन होते हैं। और ये जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, आयन होते हैं, पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। ये क्या है, रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं, एक क्या है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सो जनरली आयनिक सॉलिड में कंस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस होते हैं, पॉजिटिव दे मे बी पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज आयंस एंड दीज आर आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होते हैं। नाउ द characteristics of the ionic solids। ionic solids की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला क्या है, they are hard and brittle। क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ये आयनिक सॉलिड जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। हार्ड में तो बहुत भी ठोस होते हैं, सॉलिड बहुत हार्ड होंगे एंड दे आर ब्रिटल, जल्दी से टूट जाते हैं। जैसे क्या है, NaCl नमक का क्या है, बड़े बड़े टुकड़े से आते हैं, इनको क्या है, बाल में बहुत तेजी से फेंके क्या होंगे, ऐसे तोड़ेंगे बहुत ही हार्ड होंगे, लेकिन बाल में अगर कहीं पर पटक देते हैं, किसी चीज से हैमर से स्ट्राइक करते हैं, आसानी क्या है, दे विल आसानी से क्या है, स्प्लिट हो जाते हैं। तो सिंपली क्या है, दे आर द हार्ड एंड ब्रिटल। सेकेंड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हाइयर होता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपैरिजन इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। थर्ड वन दीज आर द they have high enthalpy of vaporization। They have the high enthalpy of the vaporization। Fourth one is the these are the bad conductor of the electricity। These are the bad conductor of the electricity in the solid state। These are bad conductor of electricity in solid state। These are the bad conductor of the electricity in the solid state because in the solid state their ions cannot move from one position to another position। That's why when the ions will not move, then current will also not be flow। But in the molten state they are the good conductor of the electricity। जो molten state होता है, तो molten state में क्या है, they are good conductor of the electricity when they are dissolved in the aqueous water के साथ dissolve करते हैं, they are the behaving as the good conductor of the electricity। Why? Because in the aqueous solution their ions are free to move about from one part of the solution to the another part of the solution। So when the ions will flow, then the current will also flow। So these are the good conductor of the electricity in the molten state, because in the molten state their ions are free, but in the solid state they are behaving the bad conductor of the electricity। Fifth one is these are the highly soluble in the water। These are the highly soluble in the water or polar molecular solids, but they are the sparingly soluble in the some of the solids non ऑर्गेनिक सॉलिड, जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, इसमें क्या है, स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं या आपके लेस सॉल्युबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आयनिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, दे आर द हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड होते हैं, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव द हाई एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन, दे आर द वाइड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, because in the solid state their ions are not free to move। When their ions are not free to move, then the electricity will not be flow। But in the molten state they are or aqueous solution, they are behaving as the good conductor of the electricity, because in the molten state their ions are free to move about from one part of the solution to another part of the solution, so electric current will flow। Fifth one is these are the good they dissolve in the large scale in the water as well in the polar covalent solution, but they are the less soluble in the like the some of the solution like the benzene हो गया, CCl4 हो गया एंड ईथर हो गया, इनमें क्या होता है, लेस सॉल्युबल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the
we study in the two classification of the solid, two part. One is the molecular solids and second is the ionic solid. In the next part we will study about the आपका पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड पढ़ेंगे, कोवेलेंट सॉलिड पढ़ेंगे, नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास.